بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. دو اہم ملاقاتیں اس وقت جاری ہیں دو اہم رہنماؤں کی. آپ کے خیال میں جو 2-3 دن سے لگ رہا تھا کہ شاید کچھ مذاکرات کے معاملے میں کچھ ایسا لگ رہا تھا, کچھ سکوت چھا گیا ہے, کچھ نرمی لگ رہی تھی کہ شاید اب بھی یہ مذاکرات مزید آگے نہیں بڑھیں گے, تو اب لگ رہا ہے کہ پھر سے وہ ایکٹیویٹی میں تیزی آئی ہے؟ دیکھیں جی, جو لوگ جن کو جو بردباری رکھتے ہیں, جن کو چیزوں کا علم ہے, جو حالات و واقعات سے واقف ہیں, جن کے کوئی اپنی انفارمیشن ہوتی ہے, ان سب کو پتہ ہے کہ کوئی سکوت نہیں آیا تھا. کوئی اس میں کسی حوالے سے بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ جی بات چیت جو ہے اس میں کچھ سکوت آ گیا ہے. بیک چینل سے کوششیں جاری تھیں. جی. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جس وقت امریکی وقت واپس گیا اور ایرانی وقت واپس گیا, اسی لمحے پاکستان کی ملٹری اینڈ سول لیڈرشپ نے کوششیں اثر نو شروع کر دی, انہی ممالک کے ساتھ رابطے کی, اور انہی رابطوں کی وجہ ہے کہ آپ کو خبریں ملتی ہیں. امریکی صدر بھی کہتے ہیں کہ اگلے چند روز میں اسلام آباد میں پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں, اور وہی وجہ ہے کہ جو جنگ بندی ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی. وہی وجہ ہے کہ دونوں طرف سے ہاسٹیلٹی جو ہے نا وہ دوبارہ سے پھر شروع نہیں ہوئی ہیں. تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے. اور آج تو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خود بھی کہا تھا کہ پاکستان کا وفد تہران آ سکتا ہے, اور یہ اچانک سے نہیں ہوا, یہ ظاہر کوآرڈینیٹ کر کے ہوتا ہے. اور جو اس طرح کی چیزیں میڈیا پہ اناؤنس نہیں کی جاتی, جیسے آپ کو وزیر خارجہ بھی کئی دفعہ کہہ چکے, کچھ چیزیں آپ میڈیا کے سامنے بتاتے ہیں جو کہ حساسیت بڑی ہوتی ہے, تو کچھ چیزیں آپ نہیں بتاتے. ایک طرف سویل مارشل جو ہے نا یہ تہران چلے گئے ہیں, تو پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ترکیہ, سعودی عرب اور قطر کے دورے پہ, وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. یعنی کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی, ملٹری لیڈرشپ بھی, دونوں اس وقت بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اپنے اپنے حوالے سے مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جی یہ عمل کا جو امن کا عمل ہے دوبارہ بحال, اور انشاءاللہ ہو جائے گا. 2-4 دن کی بات ہے, لیٹر دس ویک یا ارلی نیکسٹ ویک دوبارہ سے راؤنڈ ہوگا. ہر طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں, اور یہ بیسیکلی وزٹ جو ہے تہران کا بھی, چیف فیلڈ مارشل کا, اور 3 اہم ممالک کا پرائم منسٹر کا, وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور اس میں یہ چیزیں کوآرڈینیٹ ہونی ہے. امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ویسے قریبی رابطہ ہے, امریکی صدر نے بھی کہا ہے, تو اچھی کوآرڈینیشن کے ساتھ ایز پلان چیزیں چل رہی ہیں. انشاءاللہ اچھی خبر ملے گی. اچھا, اس تمام تر صورتحال میں بریگیڈیئر صاحب ہم نے جو ایک چیز دیکھی ہے کہ جب مذاکرات شروع ہوئے تھے تب ایران کی یورینیم افزودگی کے حوالے سے کچھ سخت جو ان کے بیانات آ رہے تھے, لیکن اب ایران نے پھر سے ایک بار نرمی دکھائی ہے اور کہا ہے کہ اس معاملے پر بات ہو سکتی ہے. ایران چاہتا ہے کہ اب یہ جنگ ختم ہو جائے. جی بالکل, نرمی دکھائیں گے تو راستہ نکلے گا نا جی. نرمی کے بغیر تو راستہ نہیں نکلتا نا, اور راستہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. ایران بالکل چاہتا ہے جنگ ختم ہو. ایران کا بہت نقصان ہوا ہے, 235-40 بلین ڈالر کے قریب ایران کا نقصان ہو گیا ہے. اس کو ری بلڈ ہونے میں پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے. کوئی تھوڑا نقصان تو ایران کا نہیں ہوا. ایران کی لیڈرشپ, ان کی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر, ان کے کالجز, سکولز, ہاسپٹلز, ایران کا تو تہس نہس ہو گیا. 31 میں سے 29 ایران کے صوبوں پر انہوں نے سٹرائکس کی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں سٹرائکس ہوئی ہیں. تو ایران بھی چاہتا ہے جنگ بندی ہو, اور چاہنا بھی ایسا ہونا بھی چاہیے. مطلب لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا بنیادی کام تو یہی ہوتا ہے اپنی قوموں کو جنگ کی دلدل سے نکالے, اور وہ لچک دکھانا چاہیے ہوگا. امریکہ بھی لچک دکھا رہا ہے, دونوں لچک دکھائیں گے تو تبھی معاملات آگے پڑھیں گے. لچک دکھا رہے ہیں تو عمل جاری ہے, جو ہے پیس پروسیس جاری ہے. لچک دکھائیں گے تو پاکستان بھی کوششیں کر رہا ہے. ایسے وقت میں جبکہ مذاکرات چل رہے ہیں اور یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ دوسرا دور بھی پاکستان میں آنے والے ہفتے میں ہوگا, یہ دونوں دورے کتنے اہم ہیں؟ جی بہت شکریہ. بالکل یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ اور اس کے بعد ترکیہ اور قطر کے دورہ کریں گے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ابھی خبر آئی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم, چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب ایران کے دورے پہ پہنچے ہوئے, جن کے استقبال ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی صاحب نے کیا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے کتنا سنجیدہ ہے. جیسا کہ آپ کے چینل کے توسط سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان اس خطے میں وہ واحد ایکٹر ہے, وہ واحد اسٹیٹ ایکٹر ہے جس کے 3 بڑے ممالک کے ساتھ, 3 میجر پاور کے ساتھ, چین, روس اور امریکہ کا پاکستان پر کتنا اعتماد ہے کہ وہ پاکستان میں وہ خطے میں رول ادا کر سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ
ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर जो इत्मीनान किया जा रहा है, और ईरान की डेलीगेशन पाकिस्तान है, तो अभी पाकिस्तानी डेलीगेशन टॉप लीडरशिप अलोंग एडेड बाय द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वहां पे गए हुए हैं। तो ये जाहिर कर रहे पाकिस्तान की संजीदा एफर्ट्स रंग ला रही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप कल ही कह चुके हैं कि मोस्ट लाइकली अगला जो डेलीगेशन होगा मोस्ट लाइकली वो पाकिस्तान में हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही मुस्बत डेवलपमेंट है। और चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि जंगबंदी न सिर्फ एक्सपेंड होगी बट लाइकली कोई डील की एक्सपेक्टेशन होगी। जो ईरान के फ्रीज एसेट्स के हवाले से बातें चल रही हैं कि ईरान के जो अब बेसिक पॉइंट्स हैं उनमें ये भी शामिल हैं, अमेरिका ने पहले भी जो इनके एसेट्स थे वो उनको खोल दिया था और ये कहा था कि ईरान उनमें से कुछ रकम इस्तेमाल कर सकता है। अब क्या जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इम्कान है कि जो एसेट्स ईरान के फ्रीज हैं उनको वापस ईरान के हवाले किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले आपने सवाल पूछा इससे पहले कि ईरान ने पिछले साल जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो जारियत की, ईरान ने उस वक्त भी बड़ी सिंसेरिटी के साथ, बड़े खुलूस नियत के साथ मुज़ाकरात की मेज पर आया। ईरान ने तब भी लचक दिखाई थी। और ईरान ने इस साल जब अमेरिका और इजरायली जारियत से पहले ईरान ने फिर लचक एंड फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, टेबल टॉक्स पे आया। ईरान ने यहाँ तक कह दिया था कि ईरान की जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो IAEA की सुपरविजन में वो रखेंगे। इवन अगेन आज फिर ईरान की जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान आया हुआ है, वी आर विलिंग टू टॉक ऑन द न्यूक्लियर एस्पेक्ट एज वेल। आपके क्वेश्चन के मुताबिक जी बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से सिग्नलिंग की गई है कि ईरान की जो फॉरेन एसेट्स स्पेशली जो कतरी बैंकों में तकरीबन $6 बिलियन पड़े हुए हैं, अमेरिका एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए टुवर्ड्स द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वो अनफ्रीज कर सकता है। क्योंकि ईरान ने काफी शहादतें दी है। ईरान खुद जंगबंदी चाहता है क्योंकि ईरान एक जिम्मेदारी के साथ एक आगे बढ़ रहा है। जहां तक ताल्लुक है यूरेनियम का, क्योंकि अमेरिका ईरान से ये एक डील एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले 20 सालों तक ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि वो 5 से 6 साल तक इसके ऊपर मतलब बैन रखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाले वक्तों में जो मेजर पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन है वो ऑलमोस्ट रिमूव हो चुके हैं। सिर्फ यूरेनियम के ऊपर, मिसाइल के ऊपर और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ऊपर, ये 3 पॉइंट्स रह गए। तो जिस तरीके से एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईरान के दौरे पर हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खलीजी ममालिक के दौरे पे हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक ट्रैक की तरफ जानिब है। क्योंकि हमें ये बात समझनी चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ईरान के पास इट्स वर्किंग एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ईरान ने ये भी सिग्नल कर दिया कि ईरान के पास ये लेवरेज है, वो रेड सी यानी कि बाबुल मंदब को भी ब्लॉक कर सकते, क्योंकि ईरान के पास इतनी वो हुतीज को एक्टिवेट कर सकते। तो अमेरिका ने ये समझ लिया है कि अस्करी फ्रंट के ऊपर ईरान को हम शिकस्त नहीं दे सकते हैं। अलबत्ता जो खलीजी ममालिक है, जिनमें से कतर है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, वो 12 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बावर करा रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला मिलिट्री फ्रंट पे हल नहीं हो सकता। ईरान एक रियलिटी है, ईरान को आप एक नॉर्मल कंट्री की तरह इंगेज करें। अलबत्ता जो बाकी रीजनल एक्टर्स हैं यूरोप के और ये ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वो भी अस्करी फ्रंट से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने नेटो ने बिल्कुल क्लियर कट अमेरिकन को बता दिया है कि ईरान के साथ आप टेबल टॉक के ऊपर बात करें, और अमेरिका बेसिकली एक फेस सेविंग देख रहा है। ईरान अमेरिका इज जस्ट लुकिंग फॉर दी ऑफ रैंप के किसी भी तरीके से कि वो अपने आप को हटाए। देखिए, जो बड़ी ताकतें होती हैं, मेजर पावर्स होती हैं, इनके लिए स्टेटमेंट्स, प्रेस्टीज बहुत मैटर करती है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप 12 अल्टीमेटम दे चुके हैं कि वो ईरान की तरफ जो एस्केलेशन लेडर होता है वो इंक्रीज करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो ईरान से एक ऑफ रैंप की तरफ तलाश है, यानी कि फेस सेविंग की तरफ। तो मेरे ख्याल से आने वाले 2 से 3 दिनों में ये क्लियर होगा, और उम्मीद यही रखी, वी कैन एक्सपेक्ट दैट टेबल की मेज के ऊपर मुज़ाकरात की थ्रू निगोशिएशन ये मामला हल होगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप
इशारा देख चुके हैं कि इसका हल सिर्फ मुज़ाकरात है और एक्सपेक्टेड डील होगा, क्योंकि जिस तरीके से इट वाज बहुत ही एक मुस्बत डेवलपमेंट है जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईरान के दौरे पे हैं और एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ साहब खलीजी ममालिक में, और खलीजी ममालिक के दौरे से ये चीज़ हम अखज़ कर सकते हैं क्योंकि वो सऊदिया और तुर्किया को भी ऑन बोर्ड लेंगे कि वो भी अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करे। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आने वाले वक्तों में जो नेक्स्ट डील एक्सपेक्टेड होगी वो पाकिस्तान में होगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एज अगेन एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे उभरेगा, क्योंकि हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। जिस तरीके से मई 2025 में पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारतीय जारियत का जवाब दिया, पाकिस्तान इस खिते में एक बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर के तौर पे सामने आ रहा है। संगीन खान, ईरान ने आज इस हवाले से कहा है कि लबनान की हिमायत से वो पीछे नहीं हटेंगे। अब जबकि लबनान की हुकूमत के दरमियान और इसराइल के दरमियान में भी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, क्या ये मामला इन जो मुज़ाकरात जो पाकिस्तान जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है इन पर भी असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि ईरान ने तो वाज़े कर दिया है कि वो लबनान के मामले में किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा? मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ईरान ने दो टर्म्स के ऊपर बातें बिल्कुल क्लियर कट बता दी। पहली, अगर सीज फायर होनी है तो इट शुड इंक्लूड द इसराइल एज वेल। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका सीज फायर में इंक्लूड और इसराइल एग्रेशन करे, पहली बात। दूसरी बात, ईरान ने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव मुज़ाकरात होंगे जिसमें ईरान के जितने भी रीजन्स में एलाइज है, से फॉर एग्जांपल लेबनान में हिजबुल्ला है, तो इसके ऊपर आप अटैक्स नहीं करेंगे। देखें जिस तरह इजराइल गाजा में जिनोसाइड कर इसी तरीके से पिछले 2 हफ्तों से 2000 से ज़ायद शहादतें हुई है मासूम सिविलियंस की लेबनान में। तो बिल्कुल अमेरिका ने ईरान की ही इस प्रेशर की वजह से अमेरिका ने इसराइल के ऊपर प्रेशर डाला, जिसकी वजह से आज भी मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका में लेबनान और इसराइल के दरमियान। तो मेरे ख्याल से अमेरिका को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि ईरान एक कॉम्प्रिहेंसिव डील चाह रहा है इसके बगैर, क्योंकि मैंने पहले भी आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से अर्ज कर चुका हूं कि ईरान इस टाइम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ मौजूद है, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑपरेशंस ईरान इज ए बेटर पोजीशन। वो अमेरिका इस बात को बखूबी अंदाजा है, क्योंकि अमेरिका इस टाइम एक ऑफ रैंप, एक फेस सेविंग की तलाश में है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अमेरिका को इस बात का अंदाजा है और अमेरिका ने इसी वजह से इस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़हन में रखा और इसराइल को प्रेशर डाला कि लेबनान के ऊपर जो जंग चल रही है उसे रोका जाए। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जापान की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, यूके की तरफ से, वेस्टर्न यूरोप की जो जितनी भी ममालिक है उन्होंने भी इस पर काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है कि लेबनान में जो इजरायली एग्रेशन चल रही है रोका जाए। तो बिल्कुल ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जितनी भी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पाकिस्तान ने लॉन्च किया है तो दैट विल इंक्लूड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पीस टॉक्स।